Thank you so much for choosing to spend your Saturday evening with us. We know that you all have many options and you've chosen to come and listen to the musicians today, so thank you so much. I'd like to invite those sitting in the back to please come up front because we are expecting latecomers to leave space at the back. There's a lot of seats in front here as well. And if you could also please switch off or put your phones on silent so it doesn't disturb the performance. So once again, welcome to this project showcase, which is a series of events where IFA shares the work of our grantees and project coordinators. I see many new faces, so please do allow us the liberty of sharing a short film that we made last year to tell you a little bit about our work and the many world of the arts that IFA traverses. In a complex world of coexistence and conflicts, the journey of the artist is both challenging and inspiring. The arts are an essential experience of the human existence. It is an adventure to know the self, understand the other, and explore the world. It is by which we examine the past, engage with the present, and imagine collective futures. But the artist needs an ecosystem with resources to create with freedom and for their art to impact our lives. India Foundation for the Arts works to create that very ecosystem. We facilitate explorations, catalyze diverse narratives, and provoke change by supporting arts research, practice, and education. We walk together with artists on their brave journey, and our journey is incomplete without you. Come join us. Thank you. So IFA, we're on the cusp of completing 30 years, which we will do in Jan 2026. So in the last 30 years, we've supported over 860 projects, artists, scholars, cultural practitioners across the country, leading to performances, films, publications, exhibitions, interactive games, interactive art, and much, much more. So we are very delighted to share one such project today. But before I tell you about the project that we are presenting today, I want to introduce the artists and welcome them, who have come all the way from Kutch, Arab Jagji, Abdul Jagji, Sikandar Langa, and Araz Langa. And with us holding all of this presentation together, we have Asif Daima. So I welcome them all. To give you a little background, we started a journey with Asif under our arts research program to rediscover the lost songs of Shah Abdul Latif Bhai. His project looking at the forgotten surs and the links between Sindh and Hind has been ongoing for the last year and is still ongoing. He's been working to work with older musicians, connecting them to younger musicians, doing in-depth interviews, connecting with scholars in Kutch, and doing a lot of workshops, interactions, mehfils and baitaks to revisit this repertoire of songs. And today Asif and his group have very kindly curated a special
series where they will share songs from the Sufi poet on love, longing, and the search for the beloved. I just want to also acknowledge the support of BNP Paribas India Foundation, who've been very generous to support the full arts research program over the last 3 years, and they're also and Asif's project, and are also presenting this evening. So Asif, over to you and welcome. सलाम, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इतने कम समय में दोबारा हम वापस आप सबके सामने इस शहर में बेंगलोर में आए हैं, हमको बहुत ज़्यादा खुशी है। और आज की ये शाम कुछ ऐसी बातों के नाम रखना चाहते हैं कि जिससे हम ये पता कर सकें कि अभी के समय में कुछ चीज़ों को कैसे समझा जा रहा है और पहले कैसे समझाया जा रहा था। उससे पहले छोटा सा कॉन्टेक्स्ट में देना चाहूँगा इस आर्ट के बारे में और इस पोएट के बारे में। सर अब्दुल लतीफ भिटाई सिंध के बहुत जाने माने संत और एक पोएट रहे हैं, जिनकी पोएट्री का एक ये हिस्सा है कि वो जब बात करते हैं तो जमीन की बात करते हैं और उसके पीछे का जब जो मायना होता है वो रूहानियत से कनेक्ट करता है। अब रूहानियत की बात समझने के लिए हमको पहले जमीन की बात समझनी पड़ेगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। शायद मैंने आज से ये ठान लिया है कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है और मैं ईश्वर के जिक्र में, ईश्वर के फिक्र में बैठ जाता हूँ और मैं उसकी माला, उसकी तस्बीह करने करता हूँ, अल्लाह 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 अल्लाह, ईश्वर ईश्वर ईश्वर, राम 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 करने लगता हूँ। और मेरा बेटा या मेरा बाप या मेरी पत्नी आके मुझसे कुछ पूछती है कि तुम्हारा कुछ काम है, मैं बोलता नहीं, मैं अभी ईश्वर प्राप्ति में लीन हूँ, तो बताइए वो कैसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। जब हकीकत में जो आपको चाहने वाला है, जमीन पे आपको समझने वाला है, उसकी बात को उसको जब जो जरूरत है तब आप उसके काम नहीं आ रहे, ईश्वर से हमारी कैसे रूबरू मुलाकात होगी। तो ऐसी बातों को लेके शाह लतीफ ने बहुत सारी बातें की। कच्छ का जो सफर शुरू हुआ, शाह लतीफ के गानों का, शाह लतीफ की जो पंक्तियां हैं उसको गाने का एक सफर आज से लगभग 30 साल पहले शुरू हुआ, जब किसी को कुछ पता नहीं था कि इस तरह के भी आर्ट हिंदुस्तान में है, ऐसे भी आर्टिस्ट हैं। तो ये सफर कुछ लोगों ने शुरू किया था, कामयाबी मिलती गई, लेकिन काम जैसे 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 आगे बढ़ता गया बहुत सी चीजें पीछे छूटती गई। तब आर्टिस्ट को भी नहीं पता था और जो लोग काम कर रहे थे उनको भी नहीं पता था कि एक्चुअली इनके साथ क्या काम करना है, क्या निकालना है, क्या हमको संभाल के रखना है। एक टाइम ऐसा आया कि पूरे आर्टिस्ट की कम्युनिटी ने और जितने भी इसके चाहने वाले थे, उसकी कम्युनिटी ने ये महसूस किया कि हमने शायद हमारे बड़े बुजुर्गों के पास जो नॉलेज था, जो विजडम था, जो बातें थी, जो कल्चर था, जो स्किल्स थी, उसको हमने डॉक्यूमेंट नहीं किया है या उनको हमने संभाल के नहीं रखा है। इसका खामियाजा ये हो रहा है कि हम अब कैसे इसको सीखेंगे। तो शाह लतीफ के जो सुर है, मैं एक क्लैरिटी लेना चाहता हूँ, जब मैं शाह लतीफ के सुर की बात करूंगा तब वो शाह लतीफ की पोएट्री का कलेक्शन है साहजो राग या साहजो रिसालो, उसके मुताबिक के जो सुर है उसकी मैं बात करूंगा। हो सकता है कि उसके जो नाम है वो कुछ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के जो रागा हैं उन राग के नाम के सिमिलर नाम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बात हम करने आए हैं वो शाह लतीफ की जो पोएट्री का कलेक्शन है साजो रिसालो। उस साजो रिसालो के अंदर 36 सुर्स जो लिखे गए हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे कारवां चलता गया, पीछे हमने देखा तो कुछ करीब कच्छ में 28 सुर गाए जाते थे, सिंध में 30 सुर गाए जाते थे, कभी राजस्थान में शायद 20-25 सुर गाए जाते थे।
लेकिन धीरे 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 ऐसा आया कि कच्छ में शायद 10-12 सुर गाए जाते हैं, 36 सुर की बात कर रहा हूँ। सिंध में कुछ 10-15 वैसे ही गाए जाते हैं। राजस्थान के अंदर जब जाए तो वो जो आंकड़ा है वो गिर के थोड़ा कम हो जा रहा है। ये सब बातें अभी की जो हमारा जो रिसर्च है उसके अंदर निकल के आ रही है, वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्यों जरूरी था हमको 36 सुर या 32 सुर जो है सालतीफ के, उसका पूरा कलेक्शन, उसकी पूरी समझ या उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन हमको क्यों करना है, इसकी क्या जरूरत है। काफी ऐसी चीजें हैं जो इनकम्प्लीट है, जो खो चुकी हैं, इसके बारे में कोई जिक्र कोई फिक्र नहीं हो रही है, तो इसके बारे में क्यों करना है। तो हम ये समझ रहे हैं कि आज के दौर में एक बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पोएट्री से अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे बदलाव महसूस किए हैं, अपनी लाइफ को हमने तब्दील किया है, हमने उससे काफी चीजें सीखी है। तो हम ये चाहते थे कि ये सारी चीजें, ये रूहानियत का एहसास, ये बातें, ये हकीकी बातें, ये जमीनी बातें, ये बातिन की बातें या जाहिर की बातें, सब लोग जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोग सुने, समझे और इसमें से कुछ पाने की कोशिश करें, तो एक तरह से ऐसा होगा कि सब लोगों पर इसका थोड़ा फायदा पहुंचता जाएगा। अनफॉर्चुनेटली एक टाइम पे ये काम सारा रुक जाता है। रिसर्च का जो काम है उस टाइम पे उसका फोकस कम हो गया, परफॉर्मेंस पे ज्यादा काम आ गया। कुछ लोग समझते थे और काम कर रहे थे, वो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, मैं कोई दोस्त या उनकी मैं कमियां गिनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, अच्छा सा काम हुआ, लेकिन उनका फोकस जो था वो इस कला को जानना, समझना, इसकी बातें लोगों तक पहुंचाना, उससे हटके ऐसा था कि ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस करना और करवाना। उससे क्या हो रहा था कि आर्टिस्ट को एक तरह का थोड़ा सा फायदा हो रहा था, लेकिन जो लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट चाहिए या लॉन्ग टर्म का फायदा चाहिए वो नहीं हो रहा था। इसलिए हम ये कोशिश कर रहे थे, मेरे साथ ये आरब भाई है, अब्दुल भाई है, हमेशा कोशिश करते थे कि हम इसको कुछ डॉक्यूमेंट करें, हम कुछ इसमें से समझ बनाए, कुछ रिसर्च करें, कुछ हम लिखें। लेकिन हर बार क्या हुआ, जहाँ पे जब हम प्रपोजल के लिए जाते थे तो हमसे यही मांगा जाता है आप प्रोजेक्ट क्या करना चाहते थे। हम समझाते थे कि हमको प्रोजेक्ट नहीं करना है, हमको रिसर्च करना है, हमको डॉक्यूमेंटेशन करना है, हमको ये बातें जाननी समझनी है। तो हर बार हमारा जो रिक्वेस्ट था उसको सक्सेस नहीं मिला। 4-5 साल तक मैंने, अब्दुल भाई ने, आरब भाई ने, सबने ये कोशिश चालू रखी। एक टाइम ऐसा आया, मैंने और अब्दुल भाई ने तो ये तय कर लिया कि अभी कुछ नहीं करना है, जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं उनके साथ मिलके जितना भी काम कर सकते हैं हम लोग खुद से, वो काम थोड़ा हम चालू रखेंगे, जितना भी हो सकता है, या वो अपनी अर्निंग से कुछ भी सेविंग करेंगे और वो हम इसमें लगाएंगे। एक्सटर्नल लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना, दूसरे के पास जाना समझाना हमने बंद कर दिया एक टाइम। ऐसे में कुछ दोस्त हमारे ऐसे मिले जो इस सिटी से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने कहा कि एक IFA करके ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसमें आप अपनी बात रख सकते हैं, शायद आपको वहां से कुछ हेल्प मिल सकती है। यकीन मानिए मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे किसी की प्रशंसा करने नहीं आए, पर दिल से ये कहना चाहते हैं कि हमने पहले ये बोल दिया था कि नहीं, हमको प्रपोजल सबमिशन ये सब नहीं करना है और हमको कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी बहुत उन्होंने कहा, फोर्सफुली कहा, तो वो हो गया और काम भी एक तरह से स्टार्ट हो गया। तब भी हमको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था, हमने काम करना शुरू कर दिया था, तब भी इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे पता चला कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है। तब हमको भी ये लगा कि यार आर्ट्स को समझना और आर्टिस्ट को समझना, जिसमें शायद हमने 15 से 20 साल डाले हैं, तब थोड़ा बहुत समझ में आया है। और इस तरह की लोगों के साथ काम करना और इतने 100-200 लोगों के साथ अलग अलग टाइप की आर्ट्स और आर्टिस्ट के साथ काम करना, ये तो बहुत बड़ा काम है। और दूसरा ये अपने आप को लगा कि नहीं, अभी भी कोई है, IFA जैसा कोई भी है जो इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। तो इस तरह से हमारा जर्नी शुरू हुआ। मकसद पे आते हैं, शायद आपको ऐसा ना लगे कि हमको तो बुलाया था
मोहब्बत के मैदान में, और ये दूसरा ही कुछ मैदान शुरू हो गया है। तो ये हमारा जिससे हम इमोशनली टच है, वो वाला मोहब्बत का मैदान था। अब इस वाले मोहब्बत के मैदान में जाते हैं तो सालतीफ का सुर, दूसरा सुर है, उसका नाम है यमन गया। बहुत इंटरेस्टिंग सुर है, काफी कम, अभी बहुत कम गाया जाता है। सालतीफ ने उसके बाद उस सुर में सिर्फ प्रेमी, बिलोवेड के बारे में बात की है और अलग अलग नाम से कहा है। पहले कहते हैं कि उथिया रे उथिया मिंजा मुंह आजार, हबीबन हरी या पीड़ा जी पचार, तबीबन तवा हद न होने हार मुंह। मेरे अंदर प्यार को जगा के खुद चले गए। ये दर्द उठा तो मैं तबीब के पास गया, तो तबीब ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, मेरा तो काम नहीं है। फिर बोलते हद न वणे हाण मुंह तू वेजन जो विसाल, हम मुझे हाल हबीब हादी थियो। महबूब से हबीब, देखिए सेकंड लाइन जो है, ये पूरी एक दास्तान चलती है। सेकंड लाइन में महबूब को हबीब बना दिया, हादी बना दिया। हादी होता है जो रास्ता दिखाता है, हबीब होता है जो करीब होता है। तो वो बोल रहा है कि ये जो दर्द जगह है, उसको हादी, उसका रास्ता दिखाने वाला वही है जिसने ये अंदर से मेरे अंदर का जो ये पीड़ा है, मेरे अंदर का दर्द है, जिसने पैदा की है, वही मुझे रास्ता दिखाएगा। अदना वणे हाण मुंह तू वेजन जो वसाल, हिन मुंहिंजे हाल हबीब हादी थियो। हबीब हादी थियो रहनुमा राहत, पीड़ा लाए पाण से लाए दीन मदद, सिपरीय सेहत दिल मुंहिंजा दुखन में। सिपरीय सेहत, अब यहाँ पे सिपरी अगेन महबूब को बुलाया जाता है। महबूब को बोलते हैं सिपरी भी बोलते हैं, उसको हबीब भी बोलते हैं, और सालतीफ ने यहाँ पे उसको रहनुमा भी बोला है, उसको राहत भी बोला है। तो इसमें आप कुछ भी समझ सकते हैं। आपका सिपरी कौन है, सिर्फ ये फाइंड आउट करने की जरूरत है। आपका सिपरी, आपका हबीब, आपका रहनुमा कौन है, वो सालतीफ ने एक बता दिया है कि इस तरह से हो सकता है, लेकिन वो ढूंढना आपको। किसी का बेटे के साथ इस तरह से हो सकता है, किसी भाई बहन के अंदर ऐसा हो सकता है, माँ बाप के बीच में हो सकता है, अलग अलग रिश्तेदारों के बीच में हो सकता है, इंसान से जानवर के बीच में भी हो सकता है, जानवरों का इंसान के बीच में भी हो सकता है। तो इसमें से आपको समझना है कि आपका बिलोवेड कौन है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात है, इसी सुर में सालतीफ बताते हैं कि अगर आप प्यार को, इश्क को पहचान नहीं पाओगे तो क्या होगा कि एक दिन वो चुभेगा, और जब वो चुभना शुरू हुआ और जब उसने जहर फैलाना शुरू किया तो क्या होगा, तब आपको पता चलेगा अरे यार ये तो सांप था, ये तो नांग था। सालतीफ बोलते हैं कि चलो इश्क के मैदान में सब कुछ भी मत सोचो, जल्दी से जल्दी आओ, कूद जाओ। कूद जाने के बाद क्या करना है देखो। ऐसा भी होता है कि जब तक आपको वो इश्क काटेगा नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि जहर चढ़ा है वो नाग था। तो इसी सुर का एक गाने के लिए हम गुजारिश करते हैं आरब भाई को कि सुर यमन कल्याण से हम शुरू करते हैं, और आप प्लीज हमें कुछ सुनाइए। शुक्रिया। हेलो
मोहब्बत जे मैदान में अची फेर प्याम सिर वठण दरदार करण सिर वठण जरा ओदा सिर वठण दरदार करणी सी गाल सदाम दिल मुंह दिठाम मथा महबूबन के ओदा मोहब्बत जे मैदान में बीठा लाल लुचने वरी पानी बदन पटियूं पानी तक तुवने पानी बदन पटियूं वरी पानी तक तुवने कंहिंखे कीअं चवनि दर्द पंहिंजे दिल जो ओ मियां अला ओला मोहब्बत जे मैदान में मोहब्बत जे मैदान में कुली पोकाए अवल सांगो सिर जो छॾंदाओ दिलाए अवल सांगो सिर जो छॾंदाओ दिलाए इश्क नाग आए ख़बर ख्वादिल का पुछो ओला तू हबीब तू तबीब तू हबीब तू हबीब तू तबीब तू दर्दन जी दवा तू भी तू लाई आज़ार जानवा साहिब ने सभ्या छिपा मियां मरीज़न खे ओला तू हबीब तू तबीब तू हबीब तू तबीब
तू दर्दन जी दवा जान मुझे जिया में और लाल जा अनवा और साहब ने शिफा मियां मरीजन खे तड़े तबीबन छॾियो हिकिड़ो बीमार है इनजे मथा वठी आया हकीमन खे तबीबन खे डॉक्टरन खे इलाज करियो पर हू चवे तो हवा वटि मुंहिंजो इलाज कोन्हे उन्हनि हीरा हलाया पर उनजो हीरो कोन हलियो उन्हनि खे ख़बर न पई थी कहिड़े दर्द जो बीमार है तबीबन का भी चवण लॻा असांखे ख़बर नथी पए कहिड़े दर्द जो बीमार है तड़े तबीबन छॾियो घायल कढियो घर मां टिकिया फट फिराक जा करियूं मूरन तन दे दिलासो दिल रुबा पवे ठार ठपन ओ विरजो वेज वञण आपरी ता खुश थिया ओला वेज न वेठे वेज वेठा हुननि खे ख़बर नथी पए थी कहिड़े दर्द जो बीमार है ता हुनजो अची महबूब आयो आइश पुथी वेही रहियो महबूब आयो चेतो फिट दही जो वेदन वेठे दोस्त पहिरीं दर आयो सहथ जी शरीर में कल कड़ियल पई जख्म थींदो आहे जॾहिं जख्म छुटंदो आहे उनखे कड़ी थींदी है पर महबूब अचण सां उहो कड़ी थी वई छो ते फट छुटे साथ जी शरीर में कल कड़ियल पई पीड़ परे पई अटल साण अजीब जे ओ ना दीदो तंग तबीब अला दीदो तंग तबीब अला दीदो तंग तबीब अला दारू मुझे दर्द जो अला दीदो तंग तबीब अला दीदो तंग तबीब अला दारू मुझे दर्द जो अला दीदो तंग तबीब मुकी दीदम बाज जियला मुकी दीदम बाज मुकी दीदम बाज जियला अजी सा अजीब अजी सा दारू मोरे दर्द जो अला दीदो तंग तबीब अला दीदो तंग तबीब अला दारू मोरे दर्द जो अला दीदो तंग तबीब धड़कू घरे मथा पुछे कट सनसूली सिरसूली धड़कू घरे मथा पुछे कट इश्क थई नागन पट खबर खादन खा पुछो हो ना दुकी
सावत चलदा है बुकी के मंगलार पेनु फकीर भिख्या वचदा है भिख्या उनके कुछ घेरिया थींदा न उनके चवंदा न बुकी मिटड़ी जो बोल है तो वो भी दो जे दर्द तो के जे पैदा क्यों है वो ही तो दे दो इंसान के रब तला पैदा क्यों है कि इंसान जो हर एक जिम्मे उन्हें रब जाते हैं आज के तो की दीवार बाज जी की बाज की दीवार बाज जी अजी साल अजी अजी साल अजी दो तंग तबीब दारू मुझे दर्द जो मेरा जो तंग है वही मेरा तबीब होगा और मेरे जो दर्द है उसकी दवा बनेगा। एक बात कही आरब भाई ने, ये गाना जब गा रहे थे उसके बीच में, कि एक आशिक है वो तबीब के पास जाता है और अपना मर्ज है उसकी जांच करवाता है, तो तबीब बोलता है तो तुम्हारे मर्ज की जांच मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है कि तुम्हें कौन सा मर्ज है, मुझे नहीं पता चल रहा है। अचानक उसने अपने महबूब को देख लिया आता हुआ और वो खड़ा हो गया, वो झूमने लगा, उसका दर्द वहीं खत्म हो गया। उसी से ये गाना शुरू हुआ कि थी दो तन तबीब दारू मुझे दर्द जो। दुखी की बात कर रहे थे, ये अकबर की बात। हम जब भी दोनों हाथ पकड़ के ऐसे जोड़ के कुछ भी अर्पण करना हो तो आगे बढ़ाते हैं, तो ऐसे ही हमको भी कुछ अर्पण हो जाएगा जब महबूब का हमारे से सामना होगा। जो तरफ हम दिल में सजा के रखते हैं महबूब के लिए, जब उससे सामना होगा तो वो अर्पण की जो तृप्ति है वो हमारे पास आ जाएगी। तो ये यमन कल्याण था। आपको मजा आया? बहुत मजा आया। मैं small summary in English if possible. Okay. From the audience or from my anyone? मैं भी कर सकता हूँ, but my English would be like it's going. I only. ठीक है, I will try. So it says my body will heal my disease, whatever I am suffering from, that will be healed by my body only. And if I'll get a chance to see my beloved, all be okay, all be fine, all be fine. So, अच्छा ये मैंने पहले एक शुरू में बात किया था कि लतीफ के 36 सुर हैं, वो सबके सब सुनना क्यों जरूरी है, मैं बोल रहा था। तो मुझे लगता है शायद बहुत बरसों के बाद आज हमने यमन कल्याण सुना है, बहुत बरसों के बाद ये गाना, बहुत सालों के बाद ये गाना यहाँ पे पहली बार
बेंगलोर में तो पहली बार, इतने सालों से हम भजन करते आए, परफॉर्मेंस करते आए, पहली बार कर रहे हैं, लेकिन लोकली भी बहुत सालों के बाद ये गाना निकला है, किसी काम के जरिए से निकला है, काम में से निकला। और देखिए कितना खूबसूरत गाना था ये, और कितनी खूबसूरत बातें हैं इसमें। दूसरी चीज जो हमारा काम है अभी का जो रिसर्च है, वो सिर्फ पोइट्री पे बात नहीं करता, वो परफॉर्मेंस प्रैक्टिसेस के ऊपर भी बात करता है। आप देखेंगे अयाज भाई अभी जो हारमोनियम बजा रहे हैं, उन्होंने सिर्फ 18 इयर्स कंप्लीट किया है। आरब भाई इज वन ऑफ द लेजेंड, अभी लिविंग लेजेंड है इस आर्ट में, इससे ऊपर कोई नहीं है। इनके ऊपर हिंदुस्तान में ये बोल सकते हैं कि सिंधी सूफी लतीफ की पोइट्री में, अभी लतीफ की पोइट्री में हम मतलब इनका मुकाबला हमको देखने को नहीं मिल रहा है। इनके साथ ये परफॉर्म कर रहे हैं, इनसे वो सीख भी रहे हैं साथ साथ में, और ऐसे स्टेज भी मिल रहा है, क्योंकि स्टेज इन आर्टिस्ट के लिए स्टेज नहीं मिल रहा है ऐसी बात नहीं है, बहुत स्टेज है। इनको लोग घर पे रिक्वेस्ट करके ले जाते हैं, आरब भाई बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन स्टेज की बात नहीं है यहाँ पे। मतलब इनको भी बाहर आके आपके सामने लेके आना और आपको ये सारी चीजें सुनाना, उसका मकसद हमारा तो एक ही है कि हमने इससे बहुत कुछ इम्पैक्ट किया है, हमको अच्छा लगा है, आप भी इसमें से कुछ उठाइए। तो इस तरह से काम हो रहा है। कच्छ में शाह की जो पोएट्री है उसको अलग अलग फॉर्मेट में परफॉर्मेंस के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है। उसमें से एक जो ये फॉर्मेट आपके सामने अभी परफॉर्म हो रहा है उसको हम बोलते हैं दास्तान। दूसरा सबसे पहले जो हम बोलते हैं कि शाह लतीफ का खुद का इजाद किया हुआ जो सुर और जो गायकी है उसको बोलते हैं साहजो राग, जो वाई के रूप में यहाँ पे थोड़ा सा पॉपुलर हुआ है, बट उसका असली नाम जो है वो साहजो राग है। इसके अलावा कच्छ में अलग अलग तरह से कम्युनिटी वाइज भी शाह लतीफ को अलग अलग गाया जाता है। जैसे आप दलित कम्युनिटी में देखेंगे तो उनके म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाते हैं, उसमें जो गमेला जिसको तगारा बोलते हैं वो आ जाता है, और घड़ा जो है वो भी आ जाता है उसमें इंस्ट्रूमेंट के रूप में। पेस्टरल कम्युनिटीज में देखेंगे, मालदारी कम्युनिटी में देखेंगे तो उसमें मल्टी फ्लूइड भी साथ में आ जाती है, तो वो भी एक परफॉर्मेंस का जो फॉर्मेट है वो अलग हो जाता है, उसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जुड़ते जाते हैं। कुछ लोग इंडिविजुअली गाते हैं संतार के साथ, संतार में 7 स्ट्रिंग का एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके साथ भी गाते हैं इंडिविजुअली, उस तरह से भी लतीफ को गाया जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज किए हुए ग्रुप सॉन्ग की तरह गाते हैं, जिसको मौलूद या मौलूदी बोला जाता है। तो ये सारी परंपरा है। हमने इस रिसर्च में ये महसूस किया है कि कच्छ के अंदर ये सारी फॉर्म्स और फॉर्मेट अभी तक जिंदा है, और अभी कच्छ में जिंदा है। दैट मीन्स हम अभी ये बोल सकते हैं कि कच्छ के अंदर साहजो राग के 2 रागी, मुकम्मल रागी अभी भी कच्छ के अंदर है। कच्छ के अंदर 2 रागी हैं, दैट मीन्स आप समझ लीजिए पूरे हिंदुस्तान में भी 2 ही रागी हैं। कच्छ के अंदर 2, दैट मीन्स पूरे हिंदुस्तान में भी 2 ही हैं। वैसे ही इस परंपरा से गाने वाले लोग भी अभी मुश्किल से हमको 7 से 8 में हम गिनती कर सकते हैं। कच्छ की मैं बात करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 7 के 8 की बात कर सकते हैं। तो इसको अभी संवारने का, इसको संभालने का टाइम हमको लगता है कि आ गया, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। इसी कला में वापस मोहब्बत के मैदान में आ जाते हैं। मोहब्बत के मैदान में अभी आपने आरब भाई ने एक जो बैत दिया था, उस बैत में बार बार ये बोला गया कि मोहब्बत के मैदान में जाओगे तो अपने सर को कहीं और देखो, अपने धड़ को कहीं और देखो। अपने सर को, see your body and your head is not connected when you are into the arena of love. तुम ऐसे समझोगे कि तुम्हारा सर और धड़ जो है वो साथ साथ काम करेगा तो फॉरगेट अबाउट इट। फिर तुम लव में नहीं हो, लव तुम पे हावी होगा। तो बार बार शाह लतीफ ने कहा है कि मोहब्बत के मैदान में उतरने से पहले अपने सर को सूली के पास समझो, अपने सर को सूली के पास समझो और धड़ उसके नीचे है। क्यों कहा है वो? उन्होंने कभी
कभी भी कोई भी डराने की बात नहीं की। जैसे आजकल मौलवी कहते हैं कि खुदा तुम्हारा ये कर देगा, पता है तुमको? भाई खुदा से अगर डरने की बात हो तो वो खुदा क्यों है? खुदा अगर डरने या डराने की बात हो तो खुदा नहीं होता, वो रहीम नहीं होता। तो वैसी बात उन्होंने कभी नहीं की है। लेकिन काफी ऐसी मुश्किलें समझाई है कि अगर आप मैदान में उतर जाओगे इश्क के मैदान में, तो पहले तो समझना पड़ेगा आपको कि इश्क क्या है। इसके हकीकी भी है, इसके मिजाजी भी है, और दोनों जरूरी है। मैंने पहले प्रोग्राम के शुरू में बता दिया कि कोई अगर ऐसा बोलेगा कि मुझे इसके मिजाजी नहीं करना है और मुझे सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति करना है या इसके हकीकी करना है, तो वो पॉसिबल हमें तो नहीं लग रहा है कि जिसको इश्क करना, जहान में रह के इश्क करना नहीं आता, वो मरने के बाद इश्क कैसे कर सकता है? जो जिसके सामने हम रूबरू हैं, जिसके सामने हम रूबरू हैं, उससे हम इश्क करना नहीं समझ पा रहे हैं, तो जिसको हमने देखा ही नहीं है, जिसको सिर्फ महसूस कर रहे हैं, तो उससे हम इश्क कैसे कर पाएंगे? तो बातिन की बात तो बाद में है, पहले तो आप रूबरू पे ध्यान दीजिए। क्या रूबरू में जो है उनसे हम अपना इश्क जो है वो मुकम्मल तौर पे कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? कर पाते हैं तो किस तरह से कर पाते हैं? जब इश्क होता है तो कैसा होता है, वो समझाने के लिए, इश्क होता है तो किस तरह से होता है और कैसा होता है, वो समझाने के लिए वापस मैं आरब भाई को बताऊंगा। इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, सोनी अगेन, ये सालतीफ का एक बहुत ही खूबसूरत राग है। आपने पंजाबी में सोनी महिवाल की एक कहानी सुनी होगी, उससे मिलती जुलती कहानी है, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है। तो पहले सुन लेते हैं, फिर बाद में इसको समझने की कोशिश करेंगे। मन में आरसी पार बजी बहुत
दर लायो सार कारण सुनी आदित आई यो कमिलाई न तो पुनन में के लगे ओला कारी रात कुल घड़ा कुल कुल मथे नांग इश्क जली जो सांग से घर घारी जिनके तरो कारी रात कुल घड़ा कुल कुल मथे भटू उठी आधी रात जो उठी आधी रात उठी आधी रात जो सोई ने सटू छड़े खीर खटू पी लोड़े ले विच में ओला ओला सोई नाले हिकिड़ी औरत न्यार जे इश्क में महबूब सां मिलण जे लाइ करे जिलो घड़ो खणी दरिया ते ईंदी हुई दरिया पार करे मेले में वञी पंहिंजे महबूब सां मिलंदी दिलो खणी आई दरिया ते अची दिलो दरिया ॾाढे मौज में हो धड़को ॾी सुनी खे चवण लॻो सुनी अॼु वापसि वञ हली सुनी चवण लॻी जेकॾहिं वापसि वेंदसि त मुंहिंजे महबूब सां इंजाम में पूरी थी पवंदी इन जे लाइ करे मूंखे वञणो ज़रूरु आहे कड़ कड़ पुनम वॼ दरिया ढप ॾिनसि ॾाढे मौज में हो सुनी खे चई वापसि वञ सुनी चवण लॻी वापसि वञण वारनि मां न आहियां कड़ कड़ पुनम वॼ तोखां कीन मुड़े थी सुनी ओ तूं ॿुधियूं आर करी आऊं गिणतिस अॼु साकी डोहे धगजे जो मन विहाल सां ओला ओला दरिया में गिड़ी तो दिलो मिटी जो कच्चो दिलो भुरी वियो हर बाण खां कमर थी तरण लगी पर मिरार के ॾेई सघे साड़ जा हम संगार अजी मिल यार साड़ जा हम संगार अजी मिल यार मोका कमीनी आहे की न कमायो साड़ जा हम संगार अजी मिल यार साड़ जा हम संगार अजी मिल यार मोका कमीनी आहे की न कमायो साड़ जा हम संगार लयन लोड़ी ना मरा ना लयन लोड़ी ना लयन लोड़ी ना मरा तेरी मंज पातार अजी मिल यार तेरी मंज पातार अजी मिल यार मौका कमेड़ी आए अजी मिल यार साड़ जाम सगार अजी मिल यार मोट कमेरी आए की न कमारो साड़ जाम सगार बिटरी जो सुनी जे कॾहिं घड़ो झुरी पियो त हाणे वापसि न वञिणो आहे तोखे हाणे वञ छा थी पियो रहमत वारी छड़ घड़ी न वञे घड़ो भॻोत खोरियो मर चूर थिए चूरो ताल मल मौला मुदतर मुद ते पूरो ओ कोरियो जब पूरो मुंह हर मन में होला होला
दिल यार केड़ो नो अखबार अजी दिल यार मौत कमेड़ी आए तीन कमायो साड़ जाम सकार अजी दिल यार साड़ जाम सकार अजी दिल यार मौत कमेड़ी आए तीन कमायो साड़ जाम सकार सडड़ा ओला ओला सुनी जे मथा जब मौत आयो मलकुल मौत के जब लगी तो ही मुझे पैगाम मुझे प्यार के साड़ के नीचे मलकुल मौत प्यार के मुझा सारे निज सलाम चाहे सोनी मुड़ी हुई सीर में जैसा कारी थी कियाम सोनी मुड़ी हुई सीर में जैसा कारी थी कियाम जे जे अचल चाहो जाम साथ जी पायारी मोड़े ना ओ अद्दियो शालती बचा जो गोटलती अद्दियो शालती ओ मुर्शद गोटलती ओ सतर का सतार यार सतर का सतार कमेड़ी आए तीन कमायो साड़ जाम सकार अजीब यार साड़ जाम सकार अजीब यार मौत कमेड़ी आए तीन कमायो साड़ जाम सकार सोहिनी को इसका हो जाता है निहार से और उसकी मुश्किल ये थी कि निहार तो नदी की उस तरफ रहता है तो उसको मिलने के लिए जाना है कोई सहूलियत नहीं है तो अपना कच्चा घड़ा जो है वो समुद्र में डाल के उसको नदी को तैरते हुए अपने महबूब से मिलने के लिए रोज जाती है। एक दिन ऐसा आता है कि तूफान आ जाता है, भारी तूफान है। सोहिनी को समझ में आता है कि आज ये तूफान मुझे महबूब से मिलने के लिए बिल्कुल ही रजामंद नहीं है, तो अब ऐसे में मैं क्या करूं। तो उसको समुद्र बोलता है कि सोहिनी वापस लौट जा, तेरा कच्चा घड़ा जो है वो कच्चा है, अभी बिखर जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, तुम डूब जाओगी, मर जाओगी, वापस लौट जाओ। तो सोहिनी बोलती है कि देखो ये ताने वाली बातें ना बहुत टाइम से चली आती है। सोहिनी बोलती है कि अगर मेरे महबूब से मिलने नहीं जाऊंगी तो जमाना मुझे ताना देगा कि सोहिनी तुम अपने बात पे खरी नहीं होती, तुम उसको मिलने तक पहुंच नहीं पाएगी, तो वो ताना मुझे नहीं सुनना है। फिर भी उसको बोलता है, समुद्र बोलता है कि लौट जाओ, तुम्हारा घड़ा बहुत ही कच्चा है, अभी टूट जाएगा, बिखर जाएगा, तुम डूब जाओगी, तुम मर जाओगी। तो बोलते कोई बात नहीं है। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे शाह लतीफ ने हम सबको सिखाई है, वो बात यह है कि शायद जेंडर की बात बहुत टाइम के बाद हमको समझ में आई है। इस पे बहुत बड़ा अफसोस होना चाहिए, खास करके हम जेंटलमैन को सॉरी। तब बोलती है ना कि सोहिनी बोलती है कि शाह लतीफ ने यहाँ पे बैत में भी बोला है कि तालिबल मौला मुदक्किर। अभी बैत सुनाया, तालिबल मौला मुदक्किर।
तो सालतीफ ने बोला है कि मर्द वो है जो अपने बिलोवेड की चाहत रखता है। अपने बिलोवेड की जो चाहत रखता है वही मर्द है। मुदक्किर का मतलब अरबी में होता है मर्द होना या मैस्कुलाइन होना। तो इसके बाद का थोड़ा सा मैं बात सोहिनी पे खत्म करूंगा। सोहिनी को जब ये सोचते, उसको मरने से दिक्कत नहीं थी, मरने की कोई परवाह नहीं थी। उसको ये था, वो सोचने लगती है कि चलो मेरा कच्चा घड़ा टूट गया, मैं डूबने लगी तो क्या होगा, ऐसा होगा कि डॉग फिशेस आएगी, डॉग फिशेस विल ईट माय बॉडी। I don't have regret that dog fishes are eating my body, but the most regretful thing is in my life that मैं दफन नहीं हो पाऊंगी। Sorry, I can't translate this into the English. I would not be buried. Why? तो उसका अफसोस क्यों था उसको? उसका अफसोस क्यों था? बोला दफन कहीं पे हो गई, मेरी कब्र अगर बन गई और फिर कहीं से मेहार वहां से निकलेगा ना तो मैं कब्र से उठ के खड़ी हो जाऊंगी। तो दैट्स व्हाई शी विशेस टू बी ब्यूरिड। वो उसको डॉग फिश खा जाए, वो फना हो जाए, उसकी बॉडी खत्म हो जाए, उससे उसको डर नहीं था। तो दैट इज लव। इस तरह से प्यार हुआ था सोनी और मेरा। नाउ टॉकिंग ऑन टू दिस प्रोजेक्ट रिसर्च पार्ट। सोनी और मेहार की दास्तान है समहाउ वो मछुआरे की जो कम्युनिटी है, पॉटर्स की कम्युनिटी उसके आसपास की है। उसमें क्योंकि मछुआरे की बातें, मछलियों की बातें, समुद्र की बातें आती है। तो हमने क्या किया कि इस तरह के जो सुर है, जो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के ऊपर या एक ऑक्यूपेशन के ऊपर बात करते हैं, उस कम्युनिटी के अंदर जाते हैं और वहां पे ये सुर वापस एक ओरिएंटेशन करते हैं, उसका रिफ्रेश करते हैं सब कम्युनिटी का कि आपकी कम्युनिटी के बारे में। जैसे ये भाई बैठे हैं हमारे, आरब भाई जत और अब्दुल जत, ये दोनों जत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो जत कम्युनिटी के ऊपर और इनकी जो बातें हैं वो सालतीफ ने शायद 4 सुरों में लिखी है। 5 माजुरी आबरी ससैकुनु, माजुरी आबरी ससैकुनु कोयारी, 5 सुरों में इन लोगों की कम्युनिटी के बारे में बात लिखी है। लेकिन ये कम्युनिटी के कुछ लोगों तक ये बातें बताती कि सालतीफ ने साजो रिसालो इसने हमारी कम्युनिटी की ये बातें रखी है। तो हम वापस जाते हैं ये सॉन्ग लेके इसी कम्युनिटी के अंदर, और इनके कम्युनिटी के लोग जो अभी गा रहे हैं वो उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। ये इस पूरा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा होता है कि कम्युनिटी का जो स्पेशल सुर है उसी सुर के ऊपर गाया जाए और जो नई पीढ़ी है उसके सामने ये बातें रखी जाए। और उसी नई पीढ़ी में अगर कोई सीखने वाला है तो आगे जाके हम उनके साथ वर्कशॉप करें और उनको ये सिखाने की कोशिश करें। तो ये एक पार्ट है उसका। सेकंड पार्ट है जो हमारा, वो हिंद और सिंध का कनेक्शन बैठाना। हिंद और सिंध का कनेक्शन बिठाने के लिए हमने अभी ऑनलाइन शुरू किया कुछ लोगों से बात करना, जो बॉर्डर की उस तरफ ऐसे आर्टिस्ट हैं, उनसे हमने बात करना शुरू किया कि आप कौन कौन से सुर गा रहे हो, अभी प्रैक्टिस में है, क्या क्या प्रथाएं ऐसी जो है वो प्रैक्टिस में है, और क्या हम एक्सचेंजेस कर सकते हैं ऑनलाइन तो ऑनलाइन। कौन से सुर आप हमसे सीख सकते हैं, कौन से सुर हम आपसे सीख सकते हैं, इस तरह क्या इस तरीके की कोई प्रथा हम स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं। ये अभी हमारे डायलॉग चल रहे हैं, ये अभी इस तरह के इवेंट अभी पाइपलाइन में है। तो इससे क्या होगा, इसमें हमें अभी तक के रिसर्च में 3 चीजें पता चली है कि इंडिया के अंदर, दैट मींस हम कच्छ की बात करें, इंडिया के 2 पार्ट ले लें, कच्छ का पार्ट और राजस्थान का पार्ट, जिसमें यहाँ पे ये इस तरह की प्रैक्टिस हो रही है। कच्छ के अंदर फकर से कह सकता हूं कि अगर आप इंटरप्रिटेशन समझना चाहते हैं, जाहिर की बात क्या है वो समझना चाहते हैं, या बातिन की बात वो समझना चाहते हैं, तो कच्छ के अंदर अभी भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ पे बहुत से लोग अभी बैठे हैं, वो भी एग्री होंगे क्योंकि उनका भी काम इसी तरह का रहा है, अभी तक मौजूद है। तो इंटरप्रिटेशन की समझ चाहिए आपको, ट्रांसलेशन की समझ चाहिए, कौन कौन से सुर है उसकी समझ चाहिए, किस तरह से गाया जाता है उसकी समझ चाहिए।
तो कच्छ इज दी लीडिंग रीजन। प्रैक्टिसेस की बात करें, जैसे वो दरबार की प्रथा, वो फकीर की प्रथा, तो उसमें अभी सिंध लीड कर रहा है, क्योंकि उस तरह का इंस्टीट्यूशन यहाँ पे नहीं बना है अभी तक, उस तरह के थॉट प्रोसेस नहीं बने। राजस्थान की बात करें, अभी तक हमने जो पाया है, कुछ सुर उनके पास हैं, लेकिन म्यूजिक के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से राजस्थान के जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। म्यूजिक के हिसाब से वो किस तरह से उसको गाया जाता है, किस तरह से उसकी पेशकश करनी है, उस हिसाब से होगा। तो ये इस रिसर्च से अभी हमको पता चल रहा है, तो इसके ऊपर भी हम आगे बात करना चाहेंगे। तो अभी का सोच ये है कि जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तब एक थोड़ा सा हम एक गाइडलाइन बता पाएंगे कि आपको क्या चाहिए, सालातीन के बारे में क्या जानना चाहते हैं और आपको कौन सी जगह पे जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए। तो ये एक आउटपुट इसका भी हो सकता है। मोहब्बत के मैदान में वापस आते हैं। मोहब्बत के मैदान में देखिए, सालातीन की एक खास बात है कि जितनी भी ये कथाएं हैं, फोक टेल्स हैं, ये प्रेम कहानी है, उसमें कभी नायक नायिका से मिलता नहीं है। कभी नायक नायिका, ये क्यों, कोई क्वेश्चन प्लीज मत पूछिएगा, अभी तक हम भी उसमें फंसे हुए हैं। नायक कभी नायिका से नहीं मिला है, फिर भी वो प्रेम कहानी चलती रहती है। लोग इंस्पायर भी हो रहे हैं, कि उस तरह का, और एग्जांपल भी दे रहे हैं कि प्रेम करो तो सोहिनी ने जैसे मैदान से किया, ऐसा प्रेम करो। प्रेम करो तो ऐसा प्रेम करो कि जैसे मारुई ने अपने मारू के साथ किया था, वैसा प्रेम करो। प्रेम करो तो मुगल ने जैसे रावण से किया था, वैसा प्रेम करो। अब दोनों मिले नहीं है, तो अभी के जमाने में थोड़ा उसको समझना मुश्किल है। भाई मिले भी नहीं है तो वो क्या प्रेम था, किस तरह का प्रेम था। तो उसी तरह का प्रेम ससुई के 5 सुर है। वैसे ससुई के अंदर 5 सुर है। हम सबको ससुई पुनु बोलते हैं, लेकिन ससुई पुनु के अंदर का एक 5वां सुर, जो नया सुर है, एक सुर बताइएगा। बिल्कुल आप उस सुर का नाम दीजिएगा और अरब भाई को उस सुर गाने की। अभी वो गाने देने के लिए बात कर रहे हैं, उसी पे हम आ रहे हैं। तो अभी सुर ससुई पुनु में से एक सुर है माजुरी सुर, माजुरी बात, ससुई आबरी सुर, वो पेश करने की अभी मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सारे सुर तो हम शायद ही यहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे और मिलके वो इस इवेंट को चला पाएंगे, इतना टाइम भी नहीं होगा। तो आबरी से शुरू करते हैं, और इसके बाद शायद मुझे टाइम जानने की जरूरत है, कोई बता दीजिए। जितना सुजन गीला उते लतीफ चवे ओ जिन्हे किल नहीं लाओ कुटुंब न कबीला ओ तरा बल रस चेहरा में Bada
मजनू मजनू मयन जू ओ माधुर्य खेमारी मजनू मयन जू माधुर खेमारी नो बागू शाल बारी नो सलामत सुपरी वडा वणवणकार जा ओ वडा वणवणकार जा चिबू जित जिया मुंह चलन तेरो तो बोलियूं कन पियाओ पर में बला हिन जा वसन ताविया पैर निकी पेजरो सुजे कील किया राय पैर रत करे लगे लुक लियाओ ओ लिखे जालिया वेठी लोरे लाल लती जवे वडा वणवणकार जा ओ वडा वणवणकार जा बड़ा ससुई के सत्यू चलो जी ससुई तू ने पे उन्हें जबलन में जो पुनर दो तो तुजारो कतारो ने जबलन में की पोजी सकती प्यादी अकेली न तो सब कुछ समर केर तो खेलो देवो त्यादियो तो सचे मां सुत्य साऊ सरदियो न थमसार सचे मां सुत्य साऊ सरदियो न थमसार सचे मां सुत्य साऊ सरदियो न थमसार आधी दे उठीना ओ पिरा पछा बेई पार सरदियो न थमसार सचे मां सुत्य साऊ सरदियो न थमसार सचे मां सुत्य साऊ सरदियो न थमसार आधी दे उठीना ओ पिरा पछा बेई पार सचे मां सुत्य साऊ सरदियो तू हिकड़ी खटियाली अकेली जतिया छा करया जो वाला वठीना सब चाकिया मरे जो वाला सब चाकी मारे बोली के सब तरह के पैरन बंद करे वो बोली के सब पैरन बंद करे नथी साथ सरे बच्ची ब्यो फिरे जो बार आयो बार सर चूंगे थमसार सजे मां सुत्य साऊ सर चूंगे थमसार सजे मां सुत्य साऊ सर चूंगे थमसार आधी गई उठीना ओ पिरा पछा गई पार सजे मां सुत्य साऊ सर चूंगे खानदान जाऊं गट खानदान जी ओ असब आए न सब में हुइस आऊं हितवानी असब आए न सब में हुइस आऊं हितवानी असब आए न सब में हुइस आऊं हितवानी के की मुके उठी जाता आ जानी के की ओ उठी जाता आ जानी छड़े व्यादरी सुनाई छड़े व्यादरी सुनाई तारी करे व्यादार सर क्यों न तमसार सत्य मां सुत्य साऊ सर क्यों न तमसार सत्य मां सुत्य साऊ सर क्यों न तमसार आधी गई उठी ओ मेरा पछा नहीं पार सत्य
उल्फती उछाऊं में छॾ चेतीअ दी उछा करिया जंहिंजो मुड़ुस वठी विया मुंहिंजो मर आऊं जला करे जबल माण बबूर में उछा करिया ओ मिठन जाए मायन में घायल की गारे मिठन जाए मायन में घायल की गारे करो साहिब शिकायत सारो ॾींहुं पियो सारे करो साहिब शिकायत सारो ॾींहुं पियो सारे विया मूंखे मारे विया मूंखे मारे विया मूंखे मारे ओ कंहिंजी करे विया कार सर क्यों न तम सार सजे मां सुते से आओ सर क्यों न तम सार सजे मां सुते से आओ सर क्यों न तम सार आधी नहीं उठी गया ओ मेरा पूछा मेरी पार सजे मां सुते से आओ ये सुर राणो है, मुमिल राणो, जो मारवाड़ में, राजस्थान में सब जगह पे बहुत ज्यादा प्रचलित है, लेकिन सिंध और कच्छ में भी गाया जाता है और ये भी एक प्रेम कहानी है।
सोतल सुन करे वे ओरड़ा 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 ahorana rohra ahorana rohra ahorana rohra tujhe jaghe jatara ahorana rohra ahorana rohra सुतड़ी हुयास से जो पलंगते सुतड़ी हुयास से सुतड़ी हुयास से जो पलंगते तारे भरी हुई रात तारे हुई रात तो चढ़े के चदर एक्चुअल में ऐसा होता है, ये आरब जी बता सकते हैं, जब इस सूफी परंपरा में राग राणु हो जाता है, इसके बाद कोई और राग नहीं हाँ जी राणु के बाद तो नहीं होता कुछ नहीं। इसलिए हम ये इस सुर को हम लास्ट में लेते हैं, ये परंपरा का हिस्सा है। हाँ होता है तो वही वो क्लियर से शुरू होगा, इसके बाद जो करना है तो क्लियर से ही होगा। फिर आपको बैठना पड़ेगा सुबह तक। और वक्त चाहिए। आओ राणा रहो रात तुंजे चांगे के चंदन चारियां। जब मुमल को मिलने के लिए राणा उमरकोट से जैसलमेर की तरफ जाता है हर रात ऊंट से, तुंजे चांगे के चंदन चारियां, चंगा का मतलब होता है ऊंट, चांगो घोड़ो, उम्र के लिहाज से होता है। उम्र के लिहाज से एक्चुअली में ऊंट को हम सिर्फ कैमल बोलते हैं या ऊंट बोलते हैं, लेकिन सिंधी में ऊंट के लिए अलग अलग शब्द का उपयोग किया गया है, वो उसकी उम्र के हिसाब से, ऊंट की उम्र के हिसाब से। तो चांगो दैट मींस यंग ऊंट जो बहुत तेजी से भाग सकता है, उसको चांगो बोलते हैं। करहो भी बोलते हैं, उठ भी बोलते हैं, डाकू भी बोलते हैं, तो ये सारे ऊंट के नाम हैं। कवाट भी बोलते हैं, एकदम बूढ़ा हो जाता है तो उसको कुछ अलग नाम से बोलते हैं, जब बच्चा आता है अलग नाम से। तो ये सारी कहानी इसके पीछे। तो बात ऐसी है कि मुगल उसको बोलती है कि राणा तुम्हारे ऊंट से मुझे मिलने के लिए आओगे तो तुम्हारे ऊंट को मैं चंदन का चारा खिलाऊंगी। जैसलमेर के अंदर चंदन का चारा मिलना मुश्किल है, लेकिन वो बता रही है कि ऐसा चारा मतलब इस क्वालिटी का होगा उस ऊंट के लिए भी, क्योंकि तुम मुझसे मिलने के लिए आ रहे हो। तो इसी प्रेम कहानी के साथ इस छोटी सी महफिल को हम यहीं पे छोड़ने की कोशिश, खत्म करने की मैं बात नहीं करूंगा, यहीं छोड़ते हैं।